Good morning, students. So let's start with the practical part of expenditure method, as we have already covered the theoretical concepts related to the this method. So in expenditure method, as we have studied, by evaluating or by applying the formula of expenditure method, we will get the answer in the form of GDP, MP or gross domestic product at market price. So what are the various methods or like the components which are being covered in this formula are: first is the final consumption expenditure, second is the net exports, and third is the gross domestic capital formation. The first part, final consumption expenditure, includes the two main components. One is the private final consumption expenditure, and second is the government, by the households and by the government for the defense or any kind of welfare purposes. Net exports is being calculated by X minus of M. X here stands for the exports and minus of imports. M here stands for the imports. The third component here is the gross domestic capital formation. It includes two components. One is the gross domestic fixed capital formation and second is the change in stock. The change in stock is already also known as the inventory investment. So if you have gross domestic fixed capital formation in the sum, that's fine. If you don't have this value, you can add it, calculate it by adding the three more terms. One is the business fixed investment, second is the government fixed investment, and third is the construction, the investment on residential construction बाय द हाउस होल्ड्स, जो हाउसेस के ऊपर कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है और जो बिजनेस के द्वारा. जब तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो कंट्री के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगी. इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो वी विल गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. हियर the change in stock can be calculated by closing stock minus of opening stock. So this is all about the expenditure method. Let's try to do the numerical question of this through this example. So you have to calculate the NDPFC using these terms. Firstly, we will see, अब जब भी स्टेटमेंट पढ़ोगे यू विल कम टू नो कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है. आपको इनकम मेथड लगाना है, आपको एक्सपेंडिचर या थर्ड मेथड जो हमने अभी किया नहीं. सो यहाँ पे आपको पढ़ने से पता लगेगा. देयर इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. सो फ्रॉम दीज टर्म्स यू विल कम टू नो कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड की यूजेज है. अब सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द जीडीपी एमपी. सबसे पहले फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखते हैं. यहाँ पे सी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आप चेक कीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है तो यही हमारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमारे पास कोई और कैटेगरी सम के अंदर नहीं है. तो यू विल एड दिस अमाउंट जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000. विल राइट हेयर प्लस second component, the net exports. Have a look. There's no export or import in the question. Leave this part. Third comes the gross domestic capital formation. सी अगर आपको यहाँ पे फिक्स टर्म के अंदर कुछ भी मिल जाए तो आपको उसके अंदर चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है टू कैलकुलेट दिस. अब यहाँ पे सबसे पहली टर्म देखिए, दैट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स आपको ये क्लियरली दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट टोटल कितने कितने सेक्टर्स के अंदर लगी है, तो दैट इज 10,000. वी विल राइट अप हेयर इन द थर्ड कॉम्पोनेंट. बट यहाँ पे सेकेंड इसके साथ क्या होता है, द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक. लेट्स हैव अ लुक. अगेन you have the inventory investment of 5,000. We will add it here. So the total is the 35,000 crore. The values are in crore terms. So this is the GDP MP. But you need to calculate what? The NDPFC. You have GDP MP. You wanted to calculate NDPFC through this. सी यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है. ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन होता है, नेट के अंदर नहीं होता. तो यहाँ पे ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस. फर्स्ट थिंग डन. सेकेंड कंसेप्ट डी डी इज सेम. थर्ड सी, यहाँ पे आपको एफ सी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको एमपी है. तो मार्केट प्राइस के अंदर ऑलरेडी इंडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज होती हैं बट फैक्टर कोस्ट के अंदर नहीं होती, तो इसके अंदर एडेड है. तो अगेन इसे हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस टू कैलकुलेट द एफ सी. सो माइनस ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलते कैसे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस ऑफ सब्सिडीज. अब यहाँ पे जीडीपी एमपी की वैल्यू थी आपके पास 35,000 करोड़. डेप्रिसिएशन आपके पास सम के अंदर है 2,000 करोड़ और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास नहीं है बट आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज हैं. तो यहाँ पे आप 1,000
माइनस ऑफ 2000 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 35,000 minus of 2000 and plus of 1000. So here the answer will be minus of 2000, यहाँ पे minus 1000 and 34,000 करोड़. So इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड का सम निकालोगे. Let's try to do another sum. Here you have to calculate the NDP MP again. But you'll see the terms. You have the private final consumption expenditure, opening stock, consumption, imports. So here again you will use the expenditure method. Expenditure method को use करने से you will get the answer in the form of GDP MP. First component आता है इसके अंदर final consumption expenditure. Have a look at the sum. फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, बट यू नो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू. वन इज द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. हेयर प्राइवेट इज 400 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन इज 90. तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया फर्स्ट कॉम्पोनेंट का 490. सेकेंड हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स मीन्स एक्सपोर्ट माइनस ऑफ इम्पोर्ट. हम यहां से वैल्यू ले लेंगे एंड के अंदर. एक्सपोर्ट माइनस ऑफ इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट कितना है यहाँ पे आपके पास 10 और इम्पोर्ट्स कितने हैं आपके पास 15. तो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज इन -5 करोड़. राइट. थर्ड आपका जो कंपोनेंट आता है दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस द चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा, चेंज इन स्टॉक होगा, दोनों नहीं है तो आपको सम के अंदर ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. सी हियर यू क्लियरली हैव द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितनी आई 80. ठीक है. प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक अगेन क्लोजिंग माइनस ऑफ ओपनिंग. तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 20 है, ओपनिंग स्टॉक 10 है. तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया दैट इज द 90 करोड़. अब आपको जीडीपी एमपी फाइंड आउट करना है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू. तीनों आइटम्स को ऐड करो. 490 प्लस ऑफ 90 माइनस ऑफ 5 दैट इज इक्वल्स टू 580 माइनस ऑफ 5 575 करोड़. दिस इज द जीडीपी एमपी. बट सम के अंदर आपको क्या बोला है एनडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए. तो एनडीपी एमपी कैसे कैलकुलेट करोगे. जीडीपी एमपी की आपके पास वैल्यू है, ग्रॉस से नेट की तरफ जाओगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा माइनस, बाकी की सारी टर्म्स बिल्कुल सेम है. तो यहाँ पे 575 जीडीपी एमपी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी. डेप्रिसिएशन चेक कीजिए. डेप्रिसिएशन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो आपके पास कितनी है 25. तो माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 550 करोड़. दिस इज योर आंसर. सो विद दिस two sums we are almost nearby the expenditure method, but we'll try to solve the more numerical questions in the next lecture. Thank you students.